So hello everyone and welcome back to my channel. In today's video, I am going to discuss some of the questions that a student of today is having right now. A student is extremely hurt at this point of time owing to current situations. He is very confused as to what he should be doing right now, and if he should be moving on, what should be its direction, or what is the point of action that a particular student should be following right now. In this particular video, I will try my level best to satisfy you and justify your feelings and give you as much information as I can. But before that, I would really like to thank each and every one of you who took my point of view with due respect and tried to support me with all their heart. Just a day ago, there was a very heated conversation and a very heated situation that happened. But my community, I was so grateful to each and every message that people sent me on YouTube and my Telegram. I was really shocked and overwhelmed to see how a community can come together and support a teacher whom they love, and for which I was feeling very blessed. I couldn't reply back to any of my students because I was not in a very good state of mind, but you all really made me come out of all that, and that is what I will try to do to repay you whatever you have given to me through this channel. So in this particular video, I will try to solve your problems and I will try to give you a direction. First of all, this video is only for those students who are trying to move on. Those who are just stuck on that situation, yeah, do not want to move on, you can kindly and very respectfully leave the video, because in this video I will try to give you a little direction. I will try to clear out your problems, and I will try to give you again a positive note that what are the things owing to which we can take as our success and move forward. So in this video, the first thing that I am going to talk about is your exam date. Now this is not an authentic information that I have got, and ये किसी को भी नहीं पता है कि आपका एग्जाम कब होगा. It was just told to us that your exam रद्द हो चुका है आपका, it has been cancelled, and your exam will be rescheduled. Up till now we have no date about when our exam will happen or what could happen in the future. We are not sure of any single thing. So at this point of time, आपका एग्जाम 20 दिन में भी हो सकता है. It can happen within a week even. It can happen within a month even. It can take 2 months, or it can also go up to December. We cannot know, and we cannot assume and pretend that we know everything and think कि हाँ एग्जाम तो reschedule हुआ है and कुछ ही टाइम में हो जाएगा. इसकी कोई भी हम लोगों को एक प्रॉपर कंफर्म्ड या ऑथेंटिक डेट नहीं मिली है. सो वी कैन जस्ट अज्यूम एंड वी कैन स्टार्ट वर्किंग. द नेक्स्ट थिंग इज कि बच्चों के दिमाग में ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन है कि विल द पैटर्न बी सेम और देयर विल बी चेंजेस इन द अपकमिंग और द रीशेड्यूल्ड एग्जाम. काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि ये वाला एग्जाम इजी आया था एंड नाउ देखना तो अब तो एग्जाम तो बहुत टफ आने वाला है. एंड आई डिड गो एंड वॉच सर्टेन ऑथेंटिक चैनल्स वेर आई ऑल्सो केम टू नो कि देर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि ऑफलाइन मोड में ना करा के, OMR में ना करा के, दे मे अगेन स्विच बैक टू योर ऑनलाइन मोड. अगेन इसका कोई भी मेरे पास एक सबूत नहीं है, एक ठोस सबूत नहीं है दैट आई गिव यू विद प्रूफ कि हाँ अब तो ऑनलाइन होगा. वट एवर आई एम सेइंग इन दिस वीडियो और ट्राइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स इज ऑल बेस्ड ऑन माई assumptions और वट एवर नॉलेज आई हैव गेन थ्रू सेवरल चैनल्स. ठीक है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे. सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. इसके तुरंत बाद मेरा एक वीडियो आएगा प्रोबेबली टुमारो, जिसके लिए अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल पे ट्यून्ड रहिएगा, बिकॉज टुमारो आई विल बी गिविंग यू अ कंप्लीट रोड मैप दैट इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट. राइट नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दीज क्वेश्चंस कि पैटर्न आपका सेम रहेगा या फिर बदल जाएगा. प्लीज अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स कि इस बार वाला जो हमारा एग्जाम आया था वो था हमारा ऑफलाइन मोड, या फिर हम लोग इसको लिख देते हैं कि OMR मोड. पहले हम लोग का कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग रही करती थी. ठीक है, तो सारे बच्चे कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के अकॉर्डिंग पढ़ के गए थे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. कैसे क्वेश्चंस आते थे हमारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में? बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चंस आते थे, एंड बहुत लेंदी क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिलते थे. राइट नाउ जब बच्चे एग्जाम देकर आए और हम लोग के हाथ में जो डेटा लगा, उससे हम लोग को पता चला कि
बिल्कुल फैक्ट बेस्ड आपका पेपर आया। अ लॉट ऑफ रेक्टिफिकेशन एंड रोट लर्निंग वाज प्रमोटेड इन दिस पर्टिकुलर पेपर कि आपको डेट्स लर्न होनी चाहिए, आपको क्रोनोलॉजी लर्न होनी चाहिए, आपको ऑथर्स के नाम एंड उनके जो वर्क्स होते हैं, हु सेड फॉर हुम वाले काफी क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिलते हैं। सो ये सारी चीजें दिखाता है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को जज ना करके आपकी रोट लर्निंग को यहाँ पे जज करने की कोशिश की गई है। मोस्ट ऑफ द बच्चों को रोट लर्निंग अच्छी लगती है। पर्सनली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ रोट लर्निंग, बिकॉज अगर आप नेशनल लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो रेक्टिफिकेशन से आपका एग्जाम नहीं लेना चाहिए, रादर देन योर कॉम्प्लेक्स स्किल्स एंड योर इन डेप्थ स्किल्स शुड बी टेस्टेड। ठीक है, तो ओएमआर में आपका फैक्ट बेस्ड चीजें आई, रोड बेस्ड चीजें आई, हम लोग ने भर भर के क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस देखे। जब ये दोनों चीजें हम लोग के सामने क्लियर हो जाती है तो सवाल उठता है कि अब जब हम लोग को पता नहीं है कि ओएमआर में ही होगा, ऑफलाइन ही मोड में होगा हमारा एग्जाम, या फिर हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग या ऑनलाइन मोड पे चला जाएगा, तो हमारे लिए क्या वो पॉइंट ऑफ एक्शन होना चाहिए जिसको हम लोग फॉलो करें। प्लीज अंडरस्टैंड कि आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके क्वेश्चंस ऐसे ना आए जिसमें आपकी लर्निंग कैपेसिटी बेस्ड ना हो। मतलब कि हम लोग का सीबीटी बेस्ड टेस्टिंग भी होता था तो हम लोग को काफी सारे असर्शन रीजन, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 एंड आपके बड़े बड़े मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते थे, बट उसके बावजूद हम लोगों को काफी सारी क्रोनोलॉजी भी देखने को मिलती थी, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलते थे। सो आई मे नॉट बी रॉन्ग एंड यू विल अग्री विथ मी कि अगर हम लोग को अभी बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है तो हम लोग उन पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ अवर सिलेबस को अभी जो हम लोग के पास टाइम है, अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए उनको रटना स्टार्ट कर दें। आई नेवर थॉट दैट आई विल आस्क माय स्टूडेंट्स कि आप लोग इसको रटो, बट क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर तो बहुत सारी चीजें हम लोग को रटनी ही पड़ती हैं, हम लोग अपने एग्जाम में भी रट के गए थे एंड बहुत सारी चीजें आपको भी रटनी है, तो आई वुड प्रेफर कि अभी आप लोग बिल्कुल दिमाग ना लगाएं कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा। हम लोग जब भी एग्जाम के लिए जाते हैं देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम लोग को लगता है कि एक महीना और मिल जाता तो मैं ये भी कर लेती या कर लेता, तो उन्हीं चीजों को आपको वापस से उठाना है एंड उसको रटना स्टार्ट कर देना है। दिस विल इंक्लूड ऑल द मेजर राइटर्स की क्रोनोलॉजी, उनकी बर्थ डेट्स आपको क्रोनोलॉजी में पता होनी चाहिए, एजेस आपको ब्रिटिश लिटरेचर की क्लियर होनी चाहिए, मूवमेंट से काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिले, देन लिटरेरी थ्योरी एंड हमारा जो कल्चरल स्टडीज है उसके अंदर कौन से राइटर ने कौन सा टर्म कॉइन किया है, उनकी कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये जो टाइम, ये जो गोल्डन पीरियड आपको मिला है, जो बहुत से बच्चों को गोल्डन नहीं लग रहा होगा, लेकिन प्लीज बी क्लियर कि आपका एग्जाम चाहे 1 महीने में हो चाहे 6 महीने के बाद, आपका ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाने वाला है। सो वट एवर मेजर पॉइंटर्स आई एम टेलिंग यू, अगर आप आज की ही डेट से उसको लर्न करना स्टार्ट कर देंगे, आप खुद देखेंगे कि आपका जब कोई न्यू एग्जाम सामने आ रहा है या नेक्स्ट जो भी रीशेड्यूल्ड एग्जाम है, आप बहुत ही लाइट फील करेंगे क्योंकि आप मेजॉरिटी ऑफ द चीजें लर्न कर चुके होंगे। नाउ अगर आपके सीबीटी में कन्वर्ट हो जाता है या ऑनलाइन मोड में कराया जाता है तो हम लोगों को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को भी अपनी बिल्कुल पक्का करना होगा। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में ज्यादातर क्वेश्चंस आई हैव सीन कि आपके ब्रिटिश लिटरेचर से ना आके लिटरेरी थ्योरी से आते हैं, बिकॉज वो एक डिफिकल्ट सेक्शन है जहां पे आपसे किसी थ्योरी को समझ कर चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं कि आप लोग करें। तो आप लोग अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को भी साइड बाय साइड ब्रश अप करने की कोशिश करें। आपको कोई थ्योरी नहीं समझ में आती है, यू कैन कम टू मी, यू कैन आस्क मी, आई विल मेक दैट वीडियो फॉर यू। मेरा ऑलरेडी कोर्स भी बना हुआ है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, जो बहुत सारे बच्चों को इस एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प किया है। उनके एक एक क्वेश्चन उस कोर्सेज की वजह से हल हो गए हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं इसी यूट्यूब पर वीडियोस बनाऊं तो आप नीचे कॉमेंट करके भी जा सकते हैं। आई एम गुड इन ईच एंड एवरी कंडीशन। तो आई गेस यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा पैटर्न का मिल गया होगा कि हम लोग को कौन से पैटर्न से पढ़ाई करनी है, क्या करनी है, एंड राइट नाउ हम लोग को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो एग्जाम कब होगा इसके बारे में हम लोग को नहीं पता, मैंने आपको डेट्स बता दी कि कभी भी इट कैन पॉप आउट एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे। पैटर्न हम लोग का क्या रहेगा उसके भी बारे में मैंने आपको बता दिया। ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा इसके बारे में हम लोग को कुछ भी नहीं पता है। जब हम लोग को कुछ भी नहीं पता होता है, हम लोग अजम्पशन के बेस पे काम करते हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग उतनी स्पीड में तो काम नहीं करते हैं। इस एग्जाम से पहले हर बच्चा 8 से 10 घंटे पढ़ रहा था
एंड आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि इतनी धूप में इतने पैसे खर्चा करने के बाद इतना बच्चों ने इतना स्पेंड किया। आई केम टू नो कि कितने सारे बच्चों ने एक एक दिन 8-8 घंटे की ट्रेन्स करा के जर्नी करके वो अपने सेंटर तक पहुंचे। कुछ कुछ बच्चों ने होटल तक 5-5 हज़ार का बुक कराया एंड दे स्टेड एंड देन फॉर द नेक्स्ट डे दे केम फॉर द एग्जाम। सो इट वॉज वेरी इजी ऑन द पार्ट ऑफ द एनटीए टू से कि हाँ जो पेपर रद्द हो गया आपका, हर उस एक बच्चा जिसने एक एक 1200 रुपए खर्चा किए, इतनी गर्मी में बीमार होके अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा होल्ड करके वो गए, इट्स जस्ट अ वेस्ट। एंड आई नो कि मन नहीं करेगा उस बच्चे का। एंड काफी सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि अब हम लोग ये रीशेड्यूल वाला पेपर नहीं देंगे, वी आर गोइंग टू गो एंड गिव द डिसम्बर वाला एग्जाम। मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड ना हो, चाहे एग्जाम 1 महीने बाद होगा चाहे 6 महीने बाद, आपका ज्ञान कभी भी वेस्ट नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड कि आप 8 घंटे पढ़ना नहीं चाहोगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको क्लैरिटी ही नहीं है कि क्या होगा आपके एग्जाम का। सो ऐसे में आप कुछ घंटे थोड़े अपने लिए रख सकते हैं, लेकिन अगेन आप पूरा पूरा दिन को वेस्ट ना करें, क्योंकि एक बार आप लीक से थोड़ा हट जाओगे ना तो आपको वापस उस चीज पे जाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इट इज ईजी फॉर मी टू से, लेकिन मैं आपके साथ उसी मेहनत के साथ लगी रहूंगी एंड हम दोनों एक साथ एक दूसरे के करियर के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित होंगे। आई अश्योर यू फॉर दैट। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़े बहुत आंसर्स मिले होंगे। मेरे अगले वीडियो का जरूर से इंतजार करना, जहां पे हम लोग और डिटेल में चीजों को डिस्कस करेंगे। आपके मन में किसी भी चीज को लेके अगर अभी भी क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई वुड लव टू हेल्प यू आउट इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड जो भी आप लोग की क्वेरीज होंगी मैं उनको इस वक्त पे लेना चाहूंगी। आप किसी भी चीज के लिए गाइडेंस चाहते हैं या कुछ भी आपके मन में है तो आप नीचे लिख सकते हैं। आई एम देयर फॉर यू एज अ फ्रेंड, योर टीचर एंड एज योर गाइड हु इज गोइंग टू सपोर्ट you in any kind of condition, be it academically or be it emotionally. ओके सो इसके साथ ही साथ आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर ले, बिकॉज यहाँ पे डेली बेसिस पे चल रही हैं आपकी फ्री सर्विसेज। अगर आप लोग डेली बेसिस पे क्वेश्चंस लगा रहे हो, इसके लिए यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग। तो आप अगर टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन जाते हो, पेपर 1 के फ्री क्वेश्चंस आपको एक दिन में 10 क्वेश्चंस मिलते हैं, पेपर 2 के 10 सेट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज मिलती हैं, दिन में 2 बार आपको इंग्लिश के पोल्स मिलते हैं जिसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, जिनकी वजह से उनकी नॉलेज सिर्फ इंक्रीज होती है। सो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। इस टाइटल को आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको सभी चीजों के लिंक मिल जाएंगे। ये कंप्लीटली फ्री है बच्चे के लिए, इसके लिए आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा। सो प्लीज इसका पार्ट बने और अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा अभी से ही बेटर करना स्टार्ट कर दें। देन अगर आप इसका पेड वर्जन लेना चाहते हैं जहाँ पे सेक्शन वाइज आपके क्वेश्चंस अवेलेबल है, जो बच्चों के एग्जाम के लिए एक बहुत ही फ्रूटफुल चीज साबित हुई, बच्चों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि इस सेग्रीगेटेड पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज ने उनकी बहुत ही मदद की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में, तो आप इसको भी जरूर से अवेल कर सकते हैं। आप इंटरेस्टेड है मेरे पेड कोर्सेज को अवेल करने के लिए, जो अभी सिर्फ 2 ही अवेलेबल हैं, विच इज कंप्लीट कोर्स ऑन कल्चरल स्टडीज एंड योर लिटरेरी थ्योरी, तो आप जरूर से मेरी इस वेबसाइट पर जाकर मेरे कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स ओनली काफी सारे जो नए बच्चे थे जिन्होंने अवेल नहीं किया था, उन्होंने फ्री डेमोज लेके इसको ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। अभी रिसेंटली जो आपके क्वेश्चंस आए थे उसको भी मैं 1-2 दिन के ही अंदर अपडेट करके उस चीज को आपके सामने ले आऊंगी, तो आप लोग को वो भी इंक्लूडेड इसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट मंथ तक आपको और भी मेरे बहुत सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं, विच इज लिटरेरी मूवमेंट इंग्लिश इन इंडिया एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शंस है आपके इस कोर्स के अंदर। तो अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको आने वाले 6 महीनों में काफी कोर्स के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब पे मैं भर भर के फ्री कंटेंट सभी बच्चों को प्रोवाइड करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप मेरा पेड कोर्स लेंगे तभी आपका भाई बनेगा सब कुछ। मैं बहुत सारी चीजें मैंने फ्री में आपके यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर रखी हैं। कई सारे बच्चों को मेरे फ्री वीडियोस ने बहुत ज्यादा मदद की है। सो इसमें आप लोग काम चोरी ना करें एंड आपके फ्री वीडियोस को पूरा पूरा देख डालें, और उसके बाद आपको जो क्वेरी होती है वो आप पूछें एंड जो नेक्स्ट वीडियो देखना चाहें उसके लिए मुझे कमेंट कर दें। इसी के साथ आई वुड लाइक टू टेक योर लीव एंड आई वुड again thank you all for your support, and I will meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.